Hi guys, hello everyone. Am I perfectly audible and visible or not? Just write yes or no in the chat window. I'm sorry, थोड़ी सी class late चालू हो रही है. It was raining heavily in Bhopal, due to which we got late in coming over to the studio. But please let me know class properly audible और visible है कि नहीं है. Please chat window पे yes or no लिख देना. Hi, good evening. Hi Shri. Hi Shreya. Hi Chirayu. Good evening. Hi Stuti. The voice is slightly lower. Simran, okay, we'll look into that. Hi Swati. ठीक है, that's great. अच्छा, so in today's class, last class's notes would probably be uploaded by tomorrow. थोड़ा सा उसमें late हो गया है, but today's class you guys will have to make the notes. So please keep your register and a pen or a pencil handy. So I'll give you 1 minute. Register और pen please पहले से अपने पास में रखो and give me a confirmation here so that I can start. राइट, सो एक रजिस्टर और पेन प्लीज अपने पास रख लो. आज की क्लास में अपने को नोट्स काफी बनाना है. आई डिक्टेट द नोट्स बीच में. सो फर्स्टली आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड देन आई डिक्टेट द नोट्स. ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव द रजिस्टर विथ यू. गुड इवनिंग श्री. हाय, हेलो, हाय श्रेया. नो, डू all the guys have the register and a pen with you? Just give a confirmation please so that we can start. Is the voice very low? A couple of students are saying that the voice is very low. Is it just them or it's happening with everyone? Is the voice low or is it fine? Low or fine? Just write any one word here, low or fine. Is it low or is it fine? Is the voice low or fine? It's low. The voice is low. I'll just get it checked. Just give me a second please. Is it better now? Is it better now? अब दोनों में से कोई एक चीज लिख दो, या तो better लिख दो या तो same लिख दो. Is it better now? It should be better वैसे. We've changed it now. Is it better now? I'm waiting for the replies. Guys, क्या आप ठीक है? Is it better now? Better. चलो, that's great. ठीक है, everyone is saying it's better. That's great. Okay, thank you so much. So, I hope everyone is doing well. पढ़ाई अपनी चालू कर दी है. बिहार जुडिशरी का ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि कब आने वाला है एग्जाम. आई थिंक इट्स इन अगस्त. इट्स गुड, दैट्स ग्रेट अनुष्का. तो इट्स मोस्टली इन अगस्त. जो पहले का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, बाकी सारे मैक्सिमम अभी इस टाइम पर किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है. सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद द फाउंडेशन बैच. Foundation is, as all of you know, basically we'll be dealing with the subjects which are common to pretty much all the state judicial service entrances. So these are subjects that we're going to take in the foundation batch, and this is going to go on for 10, 11, 12 odd months. ये पूरा साल भर चलेगा, और बीच में जैसे जैसे जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते जाएंगे वो एग्जाम्स हम सेपरेटली भी लेते जाएंगे. दैट इज वन. couple of announcements. We are having your first all India comprehensive mock next Sunday. So that's on 5th of July. 5th of July एक all India comprehensive mock होने वाला है, which is only gonna be on the foundation subjects. कुछ लोग आप में से हो जो पहले से थोड़ी बहुत जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, so वो लोग, या even the new students, because you have been studying these subjects in your law schools also, so do attempt that mock. We'll be sharing the link of that on the Telegram channel mostly by tomorrow. I'm sure all of you are already a part of the Telegram channel. We'll be posting a lot of useful content over there. So be there and be very active over there, right? So 5th को पहला mock है इस चीज के ऊपर, right? So it's not an all India open mock type, because obviously since all India judicial services is not here yet, so इसीलिए सबका पैटर्न अलग है, इसलिए अपन सिर्फ वो फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर ले रहे हैं. Subjects like CRPC, CPC, so basically all the procedural subjects as well as the basic substantive subjects like constitutional law, IPC, etc., right?
सो एक वो पहली बात. दूसरी बात, सो वी एक्सपेरिमेंटेड विद 3 टाइम स्लॉट्स, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पर कंफर्टेबल हो रहे थे. द फर्स्ट वॉज 9 o'clock. बीच में हमने एक दिन क्लास 5:30 पे भी रखी और आज हमें 8:30 पे रखी है, राइट, इस वीक. सो आई जस्ट वांट टू नो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से टाइम के साथ कंफर्टेबल है. इफ यू हैव टू पिक अप वन स्लॉट, वुड यू लाइक टू पिक अप द स्लॉट ऑफ 9 o'clock, 8:30, बात एक ही है, 9 o'clock और 5:30. प्लीज दोनों में से कोई एक स्लॉट बताओ कि कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए. विल गो अहेड विद दैट स्लॉट और वही फिर परमानेंट स्लॉट रहेगा अपने पूरे टाइम. सो 9 o'clock और 5:30. प्लीज राइट वन ऑन द चैट विंडो. 9 o'clock or 5:30. What are you guys more comfortable with? It's largely around 70% of the students have written 9 o'clock till now. There are a few students who have written 5:30 also, but I think 9 suits for most people. 9 suits for most people. Okay, it's almost evenly poised now. ठीक है, so it's almost 60-20 now. So we'll take a call on that and we'll let you guys know. It's almost evenly poised now. So we'll let you guys know mostly by tomorrow or day after. Now this weekend you do not have any classes. From Monday you'll be having one class in the evening, either at 5:30 or 9 o'clock. 5 days in a week. It's mostly going to be Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. Tomorrow you don't have any class. There are few restrictions here, but mostly by next week the restrictions in Bhopal would be very less. Abhi restrictions Bhopal में बहुत चल रहे हैं. Bhopal being a proper red zone, there are a lot of containment zones here. So वो restrictions भोपाल में comparatively कम होने वाले हैं, तो उसके बाद से मैं Saturday को भी रखेंगे. But tomorrow and Sunday you do not have any class, and the next class you'll be having would be on Monday. ठीक है, अब 9 o'clock है या 5:30 है, वो इस वीकेंड हम लोग बता देंगे. So last class में let's start with our studies now. Last class अपन लोगों ने we did the basics of constitution, the number of articles, parts, schedules. अपने schedules को याद करने की procedure अपने तरीका समझा था, which was tiers of old PM, territories, emoluments, affirmation oath, allocation of seats in Rajya Sabha, scheduled areas, other scheduled areas, scheduled areas, other scheduled areas, federal provisions, official languages, land reforms, anti-defection law, panchayats and municipalities. 12 schedules को याद करने का वो तरीका था. I hope वो अभी भी याद होगा. And then we moved on to drafting of the constitution and the role various people played in that. And then we moved on to preamble. So any doubts that you guys have regarding the last class? If there are no doubts, we'll move on with the parts of the constitution. So कोई भी doubts last class को लेके? अब नहीं बेटा, बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, तो mostly now it's an issue at your end. Please get it sorted. Any doubts with regards to the last class? आज की क्लास में नोट्स बनाने हैं, पर मैं बनवाऊंगा. So firstly I'll explain the concept and then I'll get the notes made of all the important notes or the important facts from the perspective of your examinations. Any doubts guys? Last class को लेके? No doubt, no doubt, no doubts. That's great. ठीक है, कोई भी डाउट नहीं. That's great. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. So as we discussed in the last class, constitution अपन part wise. So constitution is divided into various parts and various parts have various articles, right? तो अपन ने डिस्कस किया था कि constitution में number of parts है 22 and number of articles are 395. Right? So अपन ने इसके पहले preamble पढ़ा. Preamble was the introduction of the constitution. अपन ने याद है triple S, DR, JLEF, that's sovereign, socialist, secular, democratic republic, and then we moved on to justice, liberty, equality and fraternity. We did a couple of cases also. Berubari case जिसमें decide हुआ था that preamble is not a part of constitution, but this was overruled in the Keshwanath Bharati case जहाँ पे it was decided that preamble is a part of constitution.
राइट। सो अपन अभी तक 2 ही केसेस पढ़े हैं, आज अपन अराउंड 4-5 केसेस और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट फर्स्टली सो वील स्टार्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वाइज, राइट। सो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बड़ा छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं अपने लिए, जस्ट 3 आर्टिकल्स, इट कंप्राइजेस ऑफ 4 आर्टिकल्स, अपने काम के सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सो पार्ट 1 हेडिंग इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत। So article 1 in a way it tells the official name of a country or official names, that is India and Bharat. So India, that is Bharat, shall be a union of states. So India, that is Bharat, it's a union of states. That is obviously connected to what happened. You must have heard the stories of Sardar Vallabhbhai Patel, how he negotiated with all the over 550 princely states and उनको प्रिवी पर्स दिया गया था और प्रिवी पर्स में से डिसाइड करा गया था कि उनको हर साल का इन अकॉर्डेंस विद द लैंड दैट दे आर गिविंग अस उनको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, राइट। सो उसके बाद हमने ये डिसाइड करा था कि हम इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाएंगे इंस्टेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स which is used for the US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये होता कि हमने स्टेट्स को काफी हद तक फ्रीडम दी है, काफी इंडिपेंडेंट बनाया है। पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि सारे स्टेट्स बहुत ही टाइटली नेटेड हैं, which is in case of India. So वही कम्युनिकेशन देने के लिए हमने आर्टिकल 1 बोला, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अच्छा अभी नोट्स मत बनाना, ठीक है। आर्टिकल 1 बस इतना ही है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 2 which talks about acquisition of new territories. आप कोई भी नई टेरिटरी एक्वायर करो तो आप आर्टिकल 2 के अंडर उसको इंडिया का पार्ट बना सकते हो, ईदर एज अ यूनियन टेरिटरी और एज अ स्टेट। सो आर्टिकल 2 talks about acquisition of new territories, right? On the other hand, Article 3 talks about basically creation of new states out of the existing states. So states like Chhattisgarh, which was carved out of Madhya Pradesh, or states like Jharkhand, or states like Telangana, जहाँ पे हमने रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज करा है। और व्हाट हैपेंड विद द स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहाँ से महाराष्ट्र निकला था एंड सो ऑन। सो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का जो राइट है वो आर्टिकल 3 देता है, और नई टेरिटरीज को एक्वायर करके उसको इंडिया का पार्ट बनाने का जो राइट है वो आर्टिकल 2 देता है। तो पार्ट 1 में यही 3 आर्टिकल से काम के हैं। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 2 which talks about acquisition of new states, and article 3 which talks about reorganization of states. So नई टेरिटरी एक्वायर करके उसको स्टेट बनाना, आर्टिकल 2 एग्जिस्टिंग टेरिटरी में चेंजेस करना, इवन चेंजिंग द बाउंड्रीज और चेंजिंग द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, that's all allowed under article 3 of the constitution. So please start making the notes. अब मैं नोट्स बनवाना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं नोट्स सिर्फ उन्हीं चीज के लिखवा रहा हूं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी ना कभी कोई ना कोई जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशंस में आए हैं। वी वेंट थ्रू द जुडिशियल सर्विस क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 11 to 12 प्रोमिनेंट स्टेट्स, जिनके बहुत पहले से हो रहे हैं और जिसके क्वेश्चंस इस टाइप के इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से काफी आते हैं। तो उन्हीं के अराउंड के ही मैं अभी नोट्स लिखवा रहा हूं, राइट। सो पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 इज इंपॉर्टेंट, वी शुड नो द आर्टिकल 1 वर्बैटिम। आर्टिकल 1 ऐसा कैसा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, India, that is Bharat, shall be a union of states. India, that is Bharat, shall be a union of states. Article 2 admission or establishment of new states. Article 2 admission or establishment of new states. Admission or establishment of new states. Article 3 Article 3
Article 3, formation of new states. Formation of new states and alteration of areas. Formation of new states, alteration of areas, boundaries or names of existing states. Boundaries or names of existing states. बहुत कम लोगों को पता है, बट सिक्किम इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 2. सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी था, उसकी कुछ चीजें अपन संभालते थे, लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, वो अपन संभालते थे, और उसके अलावा सिक्किम इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करता था. 1975 में सिक्किम में मोनार्की चला करती थी, तो उन्होंने वहां के जो मोनार्क थे उन्होंने प्लेबिसाइड करवाया. सो प्लेबिसाइड, एज ऑल ऑफ अस नो, और रेफरेंडम, इट्स बेसिकली जब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखते हो और उसका एक सिंपल सा हाँ या ना में आंसर पूछते हो. व्हाट हैपेंड विद ब्रेक्सिट. तो उन्होंने प्लेबिसाइड करवाया या रेफरेंडम करवाया और सिंपल एक क्वेश्चन पूछा लोगों से, क्या आप चाहते हो हम इंडिया का पार्ट बन जाए. 98.something% लोगों ने बोला हाँ, हम चाहते हैं कि आप इंडिया का पार्ट बन जाओ. नाउ प्रीटी मच एवरीवन न्यू दैट इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंदिरा गांधी. सो बट यस, उसको एक लीगल स्टैंडिंग देने के लिए इस तरीके से करवाया गया, और फाइनली सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया बाय 36th अमेंडमेंट. उससे सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975. So Sikkim became a part of India by under Article 2, and the bifurcation that we see or alteration of boundaries that we see, that is under Article 3. So Article 1, Article 2, Article 3, ये कहानी है. ठीक है. Article 4 अपने काम करिए. Article 4 is will be covering Article 4, जब अपन Article 368 के अंदर amendment of the Constitution पढ़ेंगे और उसका प्रोसीजर और उसके केसेस पढ़ेंगे, तब Article 4 काम का होगा. बट याद रखना, Article 4 is under Part 1 of the Constitution. ठीक है, पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ. तो पार्ट 1 सिर्फ इतना ही है. ठीक है. नेक्स्ट इज पार्ट 2, which is more important as compared to the next part, which is fundamental rights. It is less important, but part 1 से ज्यादा important है. Part 2 talks about citizenship. एक अलग रीजन से पार्ट 2 अपने आप में नहीं, बट एक अलग रीजन से पिछले एक साल से सिटीजनशिप, बिकॉज ऑफ एनआरसी, बिकॉज ऑफ सीएए, काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है. बट पार्ट 2 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप और नागरिकता. ऑब्वियसली यार, दुनिया की हर कंट्री अपनी जगह पे अपने अपने लोगों के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन हमारे लोग हैं और कौन नहीं है, वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, पार्टली बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो अ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मतलब आप हमारे सिटीजन को जैसे ट्रीट करोगे, हम आपके सिटीजन को वैसे ट्रीट करेंगे. तो इंडिया का सिटीजनशिप के रूल्स पाकिस्तान को लेके अलग है, बिकॉज दैट्स एन एनिमी नेशन. यूएस को लेके अलग है, नेपाल को लेके अलग है, श्रीलंका को लेके अलग है. तो डिपेंडिंग ऑन हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ कैसे हैं और वो कंट्री हमारे लोगों को कैसे ट्रीट करती है, हमारे रूल्स चेंज हो सकते हैं. तो हर कंट्री के रूल्स अलग अलग होते हैं और हर कंट्री के अलग अलग कंट्री को लेके भी रूल्स अलग अलग होते हैं. दैट्स हाउ द सिटीजनशिप लॉ इज. राइट. अपने काम का यहाँ पे सिटीजनशिप का ब्रॉडली दो एक चीज है. वन इज ऑब्वियसली दी एनआरसी and the CAA, and second is ways of acquiring citizenship. So पहले अपन देखेंगे ways of acquiring citizenship. Now broadly there are 4 ways of acquiring citizenship. अभी लिखना कुछ भी मत, मैं चारों तरीके बाद में एक ही बार में लिखवाऊंगा. अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो और डाउट पूछो. So broadly there are 4 ways of acquiring citizenship. The first is by birth. The first way of acquiring citizenship is by birth. Now birth में उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर अपन आज की बात करें तो. राइट. सो नंबर 1 इज 26 जान 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो लोग बॉर्न हुए हैं, वो 26 जान 1950 से 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से लेके 1 दिसंबर 2004. सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड हुआ था 2003 में, एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2004. सो एक सेकंड बाइफर्केशन यहाँ हो गया. एंड थर्ड इज 3 दिसंबर 2004 से लेके अभी तक का. नाउ 26 जान 1950 के पहले जितने भी लोग थे इंडिया में, उनको तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का सिटीजन मान लिया गया. कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, उनको बाय डिफॉल्ट मान लिया गया. दैट्स नंबर 1. 26 जान 1950 से लेके, बिकॉज दैट वाज द कट ऑफ डेट, दैट इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. 26 जान 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 में भी उन्होंने सेम रूल रखा दैट एनीवन हु इज बोर्न इन इंडिया irrespective of whether their parents were born in India or not.
irrespective of whether their parents were born in India or not. But if a person is born in India, he is a citizen of India. So 1950 to 1987, anyone born in India is a citizen of India. That's number one. Number two, from 1st July 1987 to 1st of December 2004, anyone born in India and either of whose parents were born in India. तो 87 के पहले पेरेंट्स बॉर्न कहीं भी हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, पर 87 से लेकर 2004 तक पेरेंट्स में एक ना एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, तो फिर यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. दैट्स नंबर टू. एंड नंबर थ्री, फ्रॉम 3rd December 2004 to now, which is going on right now, people who are born in India and both their parents were born in India, they would be considered as an Indian citizen. क्लियर हुआ? सो पहला क्राइटेरिया जस्ट बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं. दूसरा क्राइटेरिया बॉर्न इन इंडिया बट ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया. तीसरा, फ्रॉम 3rd December 2004 से अभी तक लेके people born in India and both their parents were born in India, they will be considered as a citizen of India by birth. क्लियर हो गया? ये पहला हो गया. सेकंड इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट. डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब डिसेंट अपनी एंसेस्ट्री से कनेक्टेड होता है. तो भाई मैं तो इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ, मैं तो इंडिया में बॉर्न होता, मैं तो बर्थ के अंदर कवर हो जाता. मैं इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ हूं पर मेरे पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो उस केस में क्राइटेरिया क्या होगा? मैं इंडिया में बॉर्न हुआ हूं तो बर्थ, मैं इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ हूं पर पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो क्राइटेरिया क्या होगा? तो वो आगे अपने सेकंड तरीके में, दैट इज डिसेंट. डिसेंट में अगेन 3 क्राइटेरिया होते हैं. 26 January 1950 से लेके 10th of December 1982 तक, if someone was born in India and either of their parents were born in India, they'll be considered, someone was born outside India but either of their parents were born in India, they'll be considered as an Indian citizen by descent, not by birth but by descent. समझ में आया? Born outside India but either of your parents were born in India till 1992 में जितने लोग born हुए, they can acquire Indian citizenship by descent. That's number one. Number two, 10 December 1992 से लेके 3rd December 2004 के बीच में जितने भी लोग born हुए हैं इंडिया के बाहर and both their parents were born in India, so they can get citizenship of India by descent. तो थोड़ा बहुत इसको ऐसे कनेक्ट करो, बर्थ में जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है वो डिसेंट का पहला और दूसरा पॉइंट है. बर्थ का दूसरा पॉइंट क्या था? ईदर ऑफ द पेरेंट्स. तीसरा पॉइंट क्या था? बोथ द पेरेंट्स. डिसेंट का पहला पॉइंट क्या है? ईदर ऑफ द पेरेंट्स. और दूसरा पॉइंट क्या है? बोथ द पेरेंट्स. तो जो वहां का दूसरा और तीसरा था वो वहां का यहाँ का पहला और दूसरा है. क्लियर हुआ? 1950 से 1992 यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया. 1992 से 2004 you are born outside India, both the parents are born in India, so you can acquire Indian citizenship by descent. और 2004 से लेके अभी तक, if you are born outside India, you can only be or you can only apply for Indian citizenship by descent अगर आपके बर्थ को जिस कंट्री में आप बॉर्न हुए हो वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया. इन दैट केस you can acquire Indian citizenship by descent. 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर करवाया है वहां उस कंट्री इंडियन कॉन्सुलेट में, अदरवाइज अलाउड नहीं है. और आपको ये उसमें एफिडेविट में प्रूव करना होता है कि आपका पासपोर्ट कोई और कंट्री का नहीं है, सिर्फ आपको तभी सिटीजनशिप मिल सकती है. सो दे हैव बिकम अ लॉट मोर स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट. ये होता है. क्लियर हुआ? तो बर्थ के 3 क्राइटेरिया, जो 3 अलग अलग ईयर थे. पहला ईयर 50 से 87 बॉर्न इन इंडिया, 87 से 2004 बॉर्न इन इंडिया एंड ईदर ऑफ द पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया. 2004 से अभी तक born in India and both the parents were born in India. Descent 50 से लेकर 1992 born outside India and either of the parents born in India. 1992 से लेकर 2004 born outside India and both the parents born in India. और 2004 से लेकर अभी तक born outside India and your birth has been registered in the Indian consulate within 1 year of your date of birth. Only then you can acquire citizenship through descent. तो डिसेंट का मतलब आप बॉर्न बाहर हुए हो, आपके एंसेस्ट्री इंडिया की. तीसरा तरीका होता है पर रजिस्ट्रेशन. तो पहला बर्थ, दूसरा डिसेंट, तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज मेजरली फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. वैसे इसमें और भी क्राइटेरिया है, पर अगर अपन अभी इन अ नटशेल देखें, इट्स ब्रॉडली फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. नाउ हु आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर पीपल
who at one point of time in their life they held an Indian passport. आज इंडियन पासपोर्ट नहीं है, अगर आज होता तो फिर तो इंडियन सिटीजन होते, पर उनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट हुआ करता था, और या फिर they have been married to an Indian, they are a non-Indian but they've been married to an Indian, और या फिर they had an Indian passport, they will be called as a person of Indian origin. और भाई अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और फिर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो फिर आप रजिस्ट्रेशन से लोगे। रजिस्ट्रेशन में आपको इंडिया में पहले रुकना पड़ता है, तो या तो आपको रुकना पड़ता है 7 साल एज अ रेगुलर, आपको 7 साल रेगुलरली रुकना पड़ता है, और या तो पिछले 8 साल में 6 साल, तो या तो इरेगुलर तरीके से 8 साल में 6 साल रुको, और या तो रेगुलर तरीके से 7 साल रुको। अगर आप रुके तो फिर यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अपन ब्रॉडली अपन एक जनरेशन ऊपर जाते जा रहे हैं। बॉर्न इन इंडिया बर्थ में आ जाएगा, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया डिसेंट में आ जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत ही रैंडम रिमोट कनेक्शन इंडिया से, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज ब्रॉडली फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और या तो 7 साल रुकना पड़ेगा या पिछले 8 साल में 6 साल आपको इरेगुलरली इंडिया में रुकना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ? अब ये तो वो तरीके हो गए जब मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन इंडिया से है। सपोज अगर मेरा कोई भी कनेक्शन इंडिया से नहीं है और फिर भी अगर मुझे सिटीजनशिप चाहिए तो फिर मैं कैसे ले सकता हूं? तो फिर अपना चौथा तरीका आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज ब्रॉडली फॉर पीपल हु आर कंप्लीट फॉरेनर्स, जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं, दूर दराज तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको अपन सिटीजनशिप देते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट है, इसके रूल सबसे सिंपल है। नेचुरलाइजेशन का रूल सिर्फ 2 लाइन का है। नेचुरलाइजेशन में अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इंडिया में आके या तो 12 साल लगातार रुकना पड़ेगा या पिछले 14 साल में 11 साल रुकना पड़ेगा। तो ये तो 12 इयर्स रेगुलरली या 11 आउट ऑफ द लास्ट 14 इयर्स। अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया में पा रहे हो तो फिर यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। क्लियर हुआ? दीज आर द 4 ways of acquiring citizenship, that is birth, descent, registration and naturalization. Clear है guys? Is it clear or not? Any doubts please ask in the chat window. Birth, descent, registration, naturalization, 4 ways of acquiring citizenship. Any doubt please ask in the chat window. No doubts, that's great. No doubts, no doubts. Clear, Shubhi, that's great. कोई और डाउट पूछो। I would really love for you guys to ask doubts. Doubts जब तक क्लियर नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। Ankit, what about 2nd December 2004 in case of birth? Both your parents should be called, if they are Indian citizen and you are also born in India, in that case you will be considered as a citizen of India by birth. ये होने वाला है। दीक्षा कर लो मेरे ख्याल से। इस पर वैसे आज तो क्वेश्चन नहीं आया है, पर ठीक है यार, अपन barely 10 मिनट अपन इस पर स्पेंड कर रहे हैं और डेट्स भी याद रखना बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में पूरा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 as well as part 2 of the constitution they've been in news again, so that is why there is a chance that they might ask a question on that, so that is why इसको अपन थोड़ा ज्यादा डेप्थ में कर रहे हैं। रूपल, नेशनलाइजेशन मतलब, सो बर्थ मतलब जब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है, डिसेंट मतलब मेरा कनेक्शन कम हो गया इंडिया से, रजिस्ट्रेशन मतलब मेरा कनेक्शन और कम हो गया इंडिया से, अब मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में तभी मैं सिटीजनशिप लूंगा, और नेशनलाइजेशन मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है और फिर भी अगर मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, व्हेन सोनिया गांधी वाज मैरिड टू राजीव गांधी, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन जो था, तब रजिस्ट्रेशन में ये अलाउड नहीं था कि अगर आपकी शादी किसी इंडियन से हुई है तो फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाए जाओगे। तो सोनिया गांधी गॉट द इंडियन सिटीजनशिप नॉट बाय रजिस्ट्रेशन बट बाय नेचुरलाइजेशन। शी केम टू इंडिया in 1969, शी गॉट इंडियन सिटीजनशिप in 1984। शी हैड टू स्पेंड 15 years इन इंडिया। क्यों? क्योंकि नेचुरलाइजेशन का रूल ये कहता था। नाम सुना अदनान सामी, लिफ्ट करा दे, या फिर अपना वो बजरंगी भाईजान का गाना वो भर दो झोली में। सो अदनान सामी इज अ नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन। ही वाज अर्लियर अ कैनेडियन सिटीजन, पाकिस्तानी था वो, बट ही वाज अ पाकिस्तानी सिंगर, बट ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। नाउ ही इज अ नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन।
अदनान सामी को भी इंडिया में ऑलमोस्ट 12-13 साल रुकना पड़ता, ओनली देन ही गोना अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो इन सब ने नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप ली। रूपल आई होप क्लियर हो गया होगा। चिरायु, if you had an Indian passport at any given point of time, पहले, अभी तो नहीं है, और if you are married to an Indian citizen, right? चलो लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट राइटिंग नाउ गाइस, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 2 सिटीजनशिप। घर पे बैठ के यहां पे नोट्स बनाना बहुत जान पे आएगा। क्लास में नोट्स बनाने का एक अलग ही माहौल होता है, तो पर घर पे बैठ के बहुत जान पे आएगा, पर रिग्रेट करोगे कुछ टाइम के बाद, जब तुम्हें बार बार हर छोटी चीज के लिए क्लास देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूं, मेक श्योर दैट यू गाइस आर मेकिंग नोट्स एंड आई वांट अ वैलिडेशन ऑफ दिस। तो प्लीज राइट चैट विंडो पे और बिल्कुल सही लिखो वेदर यू गाइस आर मेकिंग नोट्स और नॉट। जस्ट राइट मेकिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स। सिर्फ एक बार ये लिख दो सो आई गेट अ वैलिडेशन तुम लोग नोट्स बना रहे हो। जस्ट राइट वंस दैट यू मेकिंग नोट्स। इंपॉर्टेंट है, और नोट्स एग्जामिनेशन कब होगा अपने को नहीं पता, और अपन कब तक ये नोट्स को यूज करेंगे अपने को नहीं पता, बट नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो उस बाद में तुम्हें हर छोटी चीज के लिए बार बार तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वेदर यू मेकिंग नोट्स और नॉट, प्लीज राइट, लिखो यहां पे मेकिंग नोट्स। लॉट ऑफ मेकिंग नोट्स, ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट मेकिंग नोट्स नाउ। पार्ट 2 सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप लॉ ऑफ इंडिया। चलो दैट्स ग्रेट, मेकिंग नोट्स, वेरी गुड। The citizenship law of India can broadly be derived from part 2 of the constitution. अच्छा, you can use shortcuts as in short forms if you want, they are your notes, बस बाद में याद रहे तुम लोगों ने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया, उसको बस ध्यान रखना, ठीक है। कैन ब्रॉडली बी डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट 2 एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 and the Citizenship Act 1955. सब हेडिंग लिखना, वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ways of acquiring citizenship. Number 1, by birth. Number 1, by birth. Write down the dates. 26 Jan 1950, 26 Jan 1950 to 1st July 1987, 26 Jan 1950 to 1st July 1987 dash born in India, born in India, that's it. 1st July 1987 to 1st December 2004, 1st July 1987 to 1st December 2004. Born in India and either of the parents born in India, born in India and either of the parents born in India, and either of the parents born in India, next 1st July 2004 till present, 1st July 2004
till present, born in India, and both the parents born in India. Born in India and both the parents born in India. Clear हुआ? And both the parents born in India. Number 2, ये पहला तरीका था by birth. Number 2, by descent, DESCENT. डिसेंड का मतलब क्या होता है? आप कहीं से डिसेंड करे हो, आप कहीं से आए हो, तो कहीं से आए हो, यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है. सो नंबर 2, बाय डिसेंट, DESCENT. डेट अपनी वही चालू होगी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, जब इन्फोर्स हुआ था, मतलब 26 Jan 1950 to 10th December 1992. 26 Jan 1950 to 10th December 1992. Born outside India, ये born outside India, born in India नहीं, born outside India, but either of the parents born in India. Born outside India, but either of the parents born in India. अगला 10th December 1992, तो ये क्या था? Born outside India, but either of the parents born in India. 10th December 1992 to 3rd December 2004. To 3rd December 2004, born outside India and both the parents born in India. 3rd December 2004 born outside India and both the parents born in India. Last 3rd December 2004 to now 3rd December 2004 till now लिख देना, 3rd December 2004 till now, only those people are eligible only those people बोलो या kids बोलो, only those people are eligible who were registered under the Indian consulate and they do not hold a foreign passport. And they do not hold a foreign passport. क्लियर हुआ? ये डिसेंट हो गया. नंबर 3 is registration and they do not hold a foreign passport. Number 3 is registration.
It is broadly for the persons of Indian origin. It is broadly for the persons of Indian origin. A person is said to be of Indian origin a person is said to be of Indian origin. A person is said to be of Indian origin if A if at any time he held an Indian passport, if at any time he held an Indian passport, if at any time he held an Indian passport, or B, if he is married to an Indian citizen or a PIO. He is married to a PIO, even then he is a PIO. If he is married to an Indian citizen or a PIO. If he is married to an Indian citizen or a PIO. एक लाइन इसमें और ऐड करना, to acquire Indian citizenship, if he is married to an Indian citizen or a PIO, to acquire Indian citizenship, he needs to regularly stay in India. He needs to regularly stay in India for the last 7 years. He needs to regularly stay in India for the last 7 years or 6 out of the last 8 years. He needs to regularly stay in India for the last 7 years or 6 out of the last 8 years. पल्ले पड़ा, क्लियर हो गया? लास्ट is naturalization. Last one is naturalization. A complete foreigner can acquire Indian citizenship complete foreigner can acquire Indian citizenship if he stays in India for the last 12 years, or 11 out of the last 14 years. For the last 12 years or 11 out of the last 14 years. Or 11 out of the last 14 years. Any doubts? Any doubts, guys? Are we all good? आगे बढ़े?
Just a 5 to 10 minutes discussion we'll have on the NRC and the Citizenship Amendment Act. Already a lot has been said and done on that. कोई भी doubts? Should we go ahead? No doubts. No doubts. चलो that's great. कुछ भी नहीं. ठीक है. चलेगा. चलो. So the Citizenship Amendment Act and the NRC has been in news for all the right or the wrong reasons recently. अब हुआ क्या था, जो ओरिजिनल अपना सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसके अंडर जनरली इमिग्रेंट्स को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पनाह देने की या फिर इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलाउ करने का हमने बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं दिए थे. बट इट वाज, ठीक है, नो डाउट्स. Yes, Ankit, it falls under two brackets. Yes, it falls under two brackets. You've completely understood that. So वो हमने अलाउ नहीं करा था. But the BJP in their 2019 का लोकसभा के मैनिफेस्टो, it had promised कि हम Citizenship Amendment Act लेके आएंगे and we'll allow the so-called illegal migrants, but people who are basically persecuted minorities, हमारे आसपास की कुछ कंट्रीज में हम वहाँ अलाउ करेंगे कि वो इंडिया में सिटीजनशिप ले पाएँ. जिनको अभी तक हम इलीगल माइग्रेंट्स बोला करते थे, अब हम इनको परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज बोल के हम इनको सिर्फ असाइलम ही नहीं देंगे, हम उनको सिटीजनशिप देंगे. हम इनको सिर्फ अपनी कंट्री में पनाह नहीं देंगे, हम इनको प्रॉपर अपनी कंट्री का अपना ही सिटीजन बनाएंगे. राइट. सो फाइनली उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए इन लोकसभा. दिस वाज ऑल अराउंड नवंबर दिसंबर. वो बिल लेके आए जिसमें उन्होंने कहा 6 रिलीजन्स ऑफ 3 कंट्रीज, एंड 6 रिलीजन्स आर गोना बी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन. हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये 6 रिलीजन के लोग जो माइनॉरिटीज में हैं 3 कंट्रीज में, विच इज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. ये 6 रिलीजन के लोग जो इन 3 कंट्रीज में माइनॉरिटीज में हैं और जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं ये 3 कंट्रीज में बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज, वो अगर इंडिया में आके सिटीजनशिप का डिमांड करेंगे, हम उनको बिल्कुल देंगे. बट ये सिर्फ हम उन लोगों को अलाउ करेंगे ताकि इसका मिसयूज नहीं हो. हम अभी लेके आए, अब लोग आने लगेंगे, मिसयूज नहीं हो, इसलिए विल ओनली अलाउ टिल 31st of December 2014. 31st December 2014 के पहले के जितने लोग इंडिया में अभी हैं, जिनको हमने सिर्फ पनाह दी हुई है, अब हम उनको एक फुल फ्लेजेड सिटीजन बना देंगे इंडिया का थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. So which act is getting repealed? The Citizenship Act of 1955 got repealed in December 2019, whereby persecuted minorities of 6 religions, जिनके मैंने नाम दिए, जो मैं लिखवा दूंगा, of these 3 countries were allowed full-fledged Indian citizenship, and these are the people who came before 31st December 2014. इसका बिल देखोगे ना, इसका बिल पता है कितने पेजेस का है. इस पे प्रोटेस्ट इतने हुए, इस पे डेथ्स हुई, सैडली बहुत प्रोटेस्ट हुए. इन अ वे कुछ जगह पे आज भी चल रहे हैं. ये बिल 2 पेज का है. just after the class do google it, Citizenship Amendment Act 2019, the Gazette of India में जो पब्लिश हुआ 2 से 2.5 पेज का बिल है और बहुत ही टू द पॉइंट कुछ प्रोविजंस लिखता है. इसमें सबसे काम का जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था वो यही था जो मैंने बताया. So this was assented by the President in December and it came into effect on 10th January 2020. It came into effect on that. So now it is not CAB, now it is CAA, Citizenship Amendment Act 2020. Obviously 2019 implemented in 2020, it was criticized because Muslims were missing from the list of religions, and इस पे गवर्नमेंट का बोलना था, लोगों का बोलना था कि यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे हो. सो दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि सिटीजनशिप देने के पीछे का क्राइटेरिया में रिलीजन को भी ऐड करा है. सीधे तरीके से नहीं करा, कुछ अलग रीजन देके करा, कुछ रैशनल देके करा, पर करा जरूर है. तो पहली बार ऐसा हुआ था, इस पर ही सारे प्रोटेस्ट हुए. इस पे गवर्नमेंट का कहना था कि मुस्लिम्स आर नॉट इन माइनॉरिटीज इन दीज कंट्रीज. So these are either proper Muslim countries or Muslim majority countries. So country like Pakistan or Afghanistan, they are anyway they're Islamic states जहाँ पे Muslims majority में. But on a closer analysis, Muslims के अंदर भी कुछ सब communities हैं जो persecuted हैं इन countries में, पर उन communities को allow हम इंडिया में
नहीं करेंगे. That's what the act said. So act only identified 6 religions and Muslims was not one of them. Right? अब हुआ ये कि इन सब का जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, दिस वाज इवन कनेक्टेड टू द एनआरसी. सो एनआरसी इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस. एनआरसी बीच में देखा होगा बहुत जगह पे अपना 2004 आया है. तो 2004 कहां से आया था? 2004 ईयर आया था बिकॉज 2003 में हमने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया था. और जब सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करा था तो हमने एक नया फंडा चालू करा था, नोन एज अ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस इन 2003. हमने कहा था we'll form a single register through which it can be decided who is a citizen of India and not. So right now there are a lot of complications. उन सबको हटा के सिर्फ एक NRC बनाते हैं. NPR से कनेक्ट मत करना. The National Population Register is for the people who are living in India. Whether they are a citizen or not, it doesn't matter. But the National Register for Citizen is only for citizens. So Venn diagram की भाषा में NRC अंदर है, NPR बाहर है. NPR is citizen plus non-citizen, NRC is only citizen. ठीक है? तो उन्होंने स्टार्ट करा था असम से, बिकॉज असम हैड अ ह्यूज इलीगल इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम. और अगले 10 साल ऑलमोस्ट 2013-14 तक इस पर कुछ खास हुआ नहीं एनआरसी के ऊपर. तो 2013-14 के आसपास सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन और उन्होंने बोला इसको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे. तो उन्होंने फिर रेगुलरली डेडलाइंस देना स्टार्ट करी एंड दे गॉट इट इंप्लीमेंटेड एंड द फाइनल रिपोर्ट्स वर पब्लिश्ड इन 2019. तो जिस टाइम पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसी के अराउंड एनपीआर की एनआरसी की भी फाइनल रिपोर्ट्स आई. और एनआरसी जब फाइनली इंप्लीमेंट हुआ तो असम की 3.3 करोड़ की पॉपुलेशन है. असम में 3.3 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसमें 3.1 करोड़ को सिटीजनशिप मिल गई और 19 लाख पीपल, ऑलमोस्ट 0.2, सो 19 लाख पीपल को बोल दिया गया दैट दीज गाइज ऑफिशियली आर नॉट सिटीजंस अंडर द एनआरसी बिकॉज दे कुड नॉट शो द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. तो वो 19 लाख के लोगों को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई जिसमें अगेन काफी मुस्लिम्स थे. तो एनआरसी और सीए प्रोटेस्टर्स ने दोनों को कनेक्ट किया और ये बोला कि ये दोनों आप एक तरीके से तौर तरीके यूज कर रहे हो टू डिप्राइव मुस्लिम्स इन इंडिया ऑफ देयर सिटीजनशिप. सो दैट इज व्हाई दिस इशू वाज रियली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. राइट? सो एनआरसी से आप लोगों को बाहर करोगे और सीए से आप मुस्लिम्स को आने से रोकोगे. तो आप आने से भी रोकोगे और लोगों को बाहर भी करोगे. सो दैट इज व्हाट द कंप्लीट कंट्रोवर्सी वाज ऑफ एनआरसी. राइट? एनपीआर इज फॉर citizens and non-citizens. That's not really important for us. But NRC and CAA के exactly ये थे. Right? अब अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम CAA को कंप्लीट कंट्री में, NRC को कंप्लीट कंट्री में अप्लाई करेंगे. बट बिकॉज ऑफ ह्यूज स्केल प्रोटेस्ट फॉर नाउ उन्होंने उसको डिले कर दिया है. तो मोस्टली बाय 2021 के अराउंड शायद इस पे वापस प्रोसेस स्टार्ट होगा. बट फॉर नाउ इट इज एप्लीकेबल ओनली इन असम. नोवेयर एल्स, इट्स एप्लीकेबल ओनली इन असम. और असम की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है. इट वाज अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक्सरसाइज, पर अब वो खत्म हो चुकी है. ठीक है? बस इतना ही है. सो एनी क्वेश्चंस इतने से उसमें, ये मैंने करंट लीगल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता दिया. कॉन्स्टिट्यूशन में कम इंपॉर्टेंट है, सीएल के में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यही यही वो आ रहा था तो मैंने बता दिया. सो एनी क्वेश्चंस एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स गाइस. जो भी अपने सीए और एनआरसी को लेके सुना, देखा, समझा, उस पर कोई भी क्वेश्चंस? Any questions? Please feel free to ask. No questions. कोई भी क्वेश्चन नहीं है. क्लियर और नॉट क्लियर? एनआरसी एंड सीए क्लियर हो गया? सीए में प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे थे, पर सीए का काम का बस ये था, 6 रिलीजन 3 कंट्रीज. ये 6 रिलीजन के लोग 3 कंट्रीज के जब इंडिया में आएंगे, और अगर वो इंडिया में आ चुके हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, they'll get Indian citizenship. Yes, Simran, they exclude the Rohingya Muslims also. Shri, that's clear, that's great. अंकित, दोनों अप्लाई हो गया है, बस एनआरसी पूरी कंट्री में अप्लाई नहीं हुआ है बेटा. चलो, लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स देन. कोई भी डाउट्स नहीं है? स्टार्ट मेकिंग नोट्स. इसको पॉइंट वाइज करते हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019
अब इसके नीचे पॉइंट्स लिखना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, amended the Citizenship Act 1955, amended the Citizenship Act 1955, amended the Citizenship Act 1955, it allowed Indian citizenship, it allowed Indian citizenship to the illegal migrants, it allowed Indian citizenship to the illegal migrants of Hindu, Sikh, illegal migrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian religious minorities, Parsi and Christian religious minorities who faced persecution, religious minorities who faced persecution, in Pakistan, who faced persecution in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Who faced persecution in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. And have been in India and entered India before 31st December 2014. And entered India before 31st December 2014. It came into effect on 10th Jan 2020. It came into effect, just one last point, it came into effect on 1st Jan 2020. On 1st of Jan 2020. ठीक है, जल्दी से एक दो पॉइंट अपन लिख लेते हैं ऑन एनआरसी, द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स the National Register for Citizens first point, its creation was mandated, its creation was mandated through the 2003 amendment, याद करना 2003 में अमेंडमेंट हुआ था अपने सिटीजनशिप एक्ट में, जो अपन ने बर्थ और डिसेंट और रजिस्ट्रेशन में भी देखा, through the 2003 amendment of the Citizenship Act. Its creation was mandated through the 2003 amendment of the Citizenship Act,
It's implemented only in Assam. It's implemented only in Assam and was published on 31st August 2019. Year important है. And it was published on 31st of August 2019. अब असम में कितने लोगों को सिटीजनशिप मिली, कितनी नहीं मिली, दैट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. 31st of August 2019. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3. वैसे बीच में ब्रेक का टाइम था, पर अब ठीक है, अपन क्लास खत्म ही करेंगे अराउंड 25 ऑड मिनट्स में, तो आज ब्रेक अपन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हर क्लास के बीच में 2 मिनट का एक छोटा सा तुम लोगों को ब्रेक हमेशा मिलेगा, ठीक है. पर पार्ट 3 which is the most important, the most controversial, the most talked about, the most famous part of the Indian Constitution, that is fundamental rights. I am sure ये जब भी कॉलेज में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा. If you were in love with Constitution, the main reason was fundamental rights, right? Constitution बाकी सब comparatively ज़्यादा ड्राई है और काफी पेल है in comparison with fundamental rights. Now, firstly, rights क्या होते हैं? अधिकार. Now, अधिकार का पूरा की पूरा प्रोसेस तब देना स्टार्ट हुआ, या उसका आइडिया भी तब स्टार्ट हुआ जब स्टेट थोड़ा सा कम ऑटोक्रेटिक बना. बहुत पहले, जब जिस टाइम पर सिर्फ प्योर मोनार्कीज चला करती थी, और बहुत पहले मतलब मैं सेंचुरीज पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में पीपल डिड नॉट हैव राइट्स. they were simple peasants and who did not have any basic rights. उस टाइम पे बस राजा हुआ करता था and he used to rule in a very autocratic way, right? But पहली बार राइट्स की लिखित में बात करी थी in a document by the name Magna Carta. So Magna Carta came in the UK in the year 1215, 1215, almost 800 साल पहले, जब पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को उनके राइट्स मिले थे, और वो भी राइटिंग में मिले थे. Because there was a huge discontent amongst the people and the king. So the people were not really happy with the king, and the king asked the church what to do. चर्च ने इंटरवीन करा, और चर्च ने किंग को बोला आप एक डॉक्यूमेंट बना के लोगों को दो जिसमें उनके राइट्स लिखे हों. तो मैग्ना कार्टा उन्होंने बनाया. इवन दो मैग्ना कार्टा डिडंट रियली सर्वाइव फॉर दैट लॉन्ग, 12-13 साल बाद डॉक्यूमेंट को वापस खींच लिया था. बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब लोगों को उनके राइट्स लिखित में मिले. क्लियर हुआ? सो दैट इज व्हाई पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is also known as Magna Carta of the Indian Constitution. क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा भी राइट्स की बात करता है और पार्ट 3 भी राइट्स की बात करता है. That is why part 3 is also known as Magna Carta of the Indian Constitution. क्लियर हुआ? Now rights का मतलब क्या? कि as a citizen, और मोस्टली क्योंकि सारे राइट सिटीजन को मिलते हैं, so as a citizen मुझे कुछ बेसिक प्रोमिसेस करे हुए हैं स्टेट ने, जो बहुत ही लिमिटेड केसेस में वो मुझसे छीन सकता है, उसको अपन राइट्स कहते हैं. ठीक है? एज ए सिटीजन बेसिक प्रॉमिस जो बहुत लिमिटेड केसेस में छीन सकता है. राइट्स ब्रॉडली 4 टाइप के होते हैं. नंबर 1, लीगल राइट्स. तो लीगल राइट्स मतलब ऐसा कोई भी राइट जो मुझे लॉ ने दिया. इलीगल राइट तो कुछ होगा नहीं. हर राइट जो होगा वो क्या होगा? वो लीगल राइट होगा. अब लीगल राइट मुझे या तो मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और या मुझे लीगल राइट मिल सकता है स्टैट्यूट से. अभी स्टैट्यूट क्या होता है अपन सबको पता है, एक्ट. पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना के गजेट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश करा दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट, राइट? सो ये सारे एक्ट्स को स्टैट्यूट बोलते हैं. और अगर हमें स्टैट्यूट से कोई राइट मिला है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी राइट. क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी राइट. राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी ना दिया है, वो तो एक अलग से स्टैट्यूट से आया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है? सो लीगल राइट एक, और लीगल राइट इज डिवाइडेड इनटू स्टैट्यूटरी राइट एंड फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. तो ऐसे राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. तो राइट फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395, इसके बीच में अगर कोई भी राइट्स दिए हुए हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हैं आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. पल्ले पड़ा? क्लियर हुआ? सबसे ऊपर हो गया लीगल राइट्स. लीगल राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ राइट्स, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड स्टैट्यूटरी राइट्स. स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं? ऐसे राइट्स जो हमें स्टैट्यूट से मिले हैं, जो हमें एक्ट से मिले हैं, जो पार्लियामेंट ने बिना कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी छिड़खानी किए सेपरेटली पास करे, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स.
और दूसरे टाइप के राइट्स कौन से हो गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से जो मिले उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स कौन से हुए, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नोन एज, और पार्ट 3 इज आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई, क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड which listed down the rights of the people. It was released in 1250. ठीक है, now type of fundamental rights. Now there were broadly 7 type of fundamental rights which have now been reduced to 6. पहले 7 थे, मैंने सातों के नाम जानबूझ के लिखे हैं, वो भी पता होना चाहिए कौन सा हटाए, और अब 6 हो गए। तो कौन से राइट्स, नाउ फर्स्टली पार्ट 3 इज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात चलती है, जिसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, वो सब अपन पढ़ेंगे आगे। राइट टू फ्रीडम, तो लोगों की फ्रीडम्स की बात, लोगों की लिबर्टीज की बात, याद है प्रियम्बल में प्रॉमिस किया था कि हम लिबर्टी देंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो वो प्रॉमिस हमने पूरा कैसे किया, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो चाइल्ड लेबर, बेगार, ये सब हम लोगों ने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 से रिस्ट्रिक्ट किया। नंबर 4 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑब्वियसली इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, आपको लोगों को प्रॉमिस करना था कि रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड एनीवन इज प्रैक्टिस टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ये प्रॉमिसेस हमने कहां से किए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जो अपना चौथा राइट हो गया। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, so rights of minorities and minorities on the basis of various factors, आर्टिकल 29 और 30 इसकी बात करता है, और वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं, पढ़ेंगे अपन डेप्थ में। राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) में हुआ करता था, इट हैज नाउ बीन डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, पर अब 44th अमेंडमेंट से डिलीट हो गया। राइट, तो छठा वाला खत्म हो गया है, तो अभी तक सिर्फ 5 ही है, और अब 6th नया वाला हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उबी जस सिबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो शुरू के 6 हमने जो बात करी, जो 5 है, वो हमने किसकी बात करी, राइट्स की बात करी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेमेडी की बात कर रहे हैं। आपने मुझे अधिकार तो पूरा दे दिया, पर आपने मेरे को कोर्ट अप्रोच करने की रेमेडी नहीं दी, आपने मुझे कोर्ट अप्रोच करने का राइट ही नहीं दिया, तो फिर वो अधिकार का मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि अधिकार कभी ना कभी तो मुझसे छीनने वाला है ना। और अगर किसी ने मुझसे अधिकार मेरा छीना, और अब अगर मैं कोर्ट अप्रोच कैसे करूं, कहां करूं, कितने टाइम के अंदर करूं, क्या प्रोसीजर फॉलो करूं, कोर्ट मुझे क्या क्या रेमेडीज दे सकता है, मुझे जस्टिस कैसे दिला सकता है, मुझे कंपनसेशन मिलेगा, सामने वाले के ऊपर फाइन लगेगा, उसको जेल होगी, इंप्रिजनमेंट होगी, क्या होगा, ये सब भी तो मुझे पता होना जरूरी है। उसकी बात करता है अपना आखिरी वाला पॉइंट, विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, जहां पर रिट्स पढ़ने वाले हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 7 राइट्स, जिसमें से अब 6 बचे हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया है बाय 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर हुआ, इतना लिख लेते जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जो अपन समझेंगे कि स्टेट क्या होता है। ठीक है, चलो क्विकली राइट पार्ट 3 एंड रियली डेवलप योर राइटिंग स्पीड। थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूं ताकि अपने लिखने में टाइम कम जाए और समझने में ज्यादा जाए। ठीक है, तो अपना स्पीड पे तेज स्पीड फॉलो करना। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, Part 3 fundamental rights. They are the most basic. They are the most basic rights given to citizen. The most basic rights given to citizens. ब्रैकेट में लिखना, and some even to non-citizens. अच्छा, कौन से citizen, कौन से non-citizen, वो अपन पढ़ेंगे बाद में. And some even to non-citizens, and some even to non-citizens, the most basic rights given to citizens, bracket में लिखना, and some even to non-citizens, full stop. They are also known as, Magna Carta, MAGNA CARTA,
They are also known as Magna Carta of the Indian Constitution, The Magna Carta was the first ever document. The Magna Carta was the first ever document in the world which provided for rights of the people. The Magna Carta was the first ever document in the world which provided for rights of people and was released in 1215. And was released in 1215. And was released in 1215. अब एक चीज करो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बना दो। तो ऊपर लीगल राइट्स, एक साइड चले जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक साइड चले जाएगा स्टैट्यूटरी राइट्स। सो लीगल राइट्स, ऑल राइट्स आर एनीवे नोन एज लीगल राइट्स, क्योंकि कोई भी राइट तभी तो है जब हमें लॉ ने दिया है वो। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स और मॉरल राइट्स, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू आवर डिस्कशन। ऑल द राइट्स आर बेसिकली नोन एज लीगल राइट्स। लीगल राइट्स को डिवाइड कर दिया अपन दो पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर भी एक सबसेट हो जाता है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हैं आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नीचे एक लाइन आके हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। वैसे अपन ये सारे राइट्स आगे पढ़ने वाले हैं, पर एक बार में क्विकली इन 6 राइट्स का नोट बना लो। जस्ट डू नॉट राइट टू प्रॉपर्टी, पर ये 6 राइट्स का नोट बना लो। कभी कभी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आई हैव सीन अ कपल ऑफ सच क्वेश्चंस इन द प्री एग्जामिनेशन स्पेशली ऑफ क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स। So along with the articles, quickly ये सारे लिख लो। Type of fundamental rights. The heading should be type of fundamental, not just type of rights, type of fundamental rights. Type of fundamental rights, quick. Number 1, right to equality, Article 14 से 18. Right to equality, Article 14 से 18. Number 2, right to freedom, Article 19 से 22. Right to freedom, Article 19 से 22. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जो अपन 19 से 22 तक पढ़ेंगे। Number 3, right against exploitation, right against exploitation, Article 23 and 24. Right against exploitation, things like bonded labor and forced labor, वो सब 23-24 ने बैन किया है। Number 4, freedom of religion, Article 25 से 28. Freedom of religion, Article 25 से 28. Number 5,
cultural and educational rights, cultural and educational rights, cultural and educational rights, Article 29 and 30, Article 29 and 30. Number 6, right to constitutional remedies. अभी प्रॉपर्टी मत लिखना. Right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, Article 32. ये अपने 6 टाइप ऑफ राइट्स हो गए. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32. Just write one more line. Right to property, right to property, ब्रैकेट में लिखना अंडर आर्टिकल 31, under Article 31 and Article 19(1)(f) and Article 19(1)(f) were deleted by 44th Amendment, were deleted by 44th Amendment 1978. ब्रैकेट में लिख लेना, now right to property is merely a legal right, were deleted by 44th Amendment 1978. Now right to property is merely a legal right. Now right to property is merely a legal right. पहले पढ़ा, क्लियर हुआ? तो नाउ राइट प्रॉपर्टी इज मेरली लीगल. ये 6 टाइप के राइट्स हो गए. एक आखिरी चीज अपन आज कर लेते हैं बिफोर रैपिंग अप. नाउ राइट्स इज और स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स, it's not basically to protect me from someone else or protect people from people. It's basically against arbitrary state action. स्टेट कहीं इतना पावरफुल नहीं हो जाए कि वो अपने आप को लोगों से ऊपर समझने लगे और लोगों के राइट्स अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कभी भी छीनने लगे. यहां से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बॉर्न हुआ था, which means I can only take the state to the court for infringement of fundamental rights. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं ही किसके अगेंस्ट? वो आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है. तो स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स में मतलब मैं स्टेट को ही सिर्फ कोर्ट लेके जा सकता हूं फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स की बिगनिंग ही इस चीज से करनी चाहिए कि स्टेट क्या होता है. इफ इट इज अगेंस्ट स्टेट एक्शन देन व्हाट इज स्टेट? क्या गवर्नमेंट स्टेट है? क्या लेजिस्लेचर स्टेट है? क्या पुलिस स्टेट है? क्या BHEL स्टेट है? क्या लीगल एड स्टेट है? क्या टॉप रैंकर स्टेट है? क्या क्या NLSIU स्टेट है? ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो स्टेट क्या होता है? तो जो पहला आर्टिकल है, ओप्स फीचर्स आई थिंक बीच में अपने स्किप हो गए, अपन फीचर्स पे स्टेट की डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं. जो पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज आर्टिकल 12, वो खुद स्टेट की ही डेफिनेशन की बात करता है और वो बोलता है इन दिस पार्ट अनलेस अ कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट शैल इंक्लूड, ब्रॉडली 4 चीजें हैं, इसको 4 में डिवाइड करते हैं. द स्टेट शैल इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the government and the legislature of each state, all the local authorities and other authorities. So government and the parliament of India, मतलब union executive मोदी जी और union legislature लोक सभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नंबर 2, the government and the legislature of each state, मतलब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, वो भी आ जाएंगे. नंबर 3, लोकल अथॉरिटीज. Local authorities is obviously because we now have a 3-tier government. 3-tier मतलब we have a union and state and पंचायत and municipalities. तो लोकल के अंदर भी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएगी. तो कौन कौन आ गया अभी तक? यूनियन गवर्नमेंट आ गई, यूनियन लेजिस्लेचर आ गया,
स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, पंचायत आ गई और म्यूनिसिपैलिटीज आ गई। चौथा पॉइंट है यहाँ पे अ वर्ड और अ टर्म बाय द नेम अदर अथॉरिटीज। अब ये अदर अथॉरिटीज तो वैसा ही हो गया जैसा अपन, आई एम श्योर सारे लॉ स्कूल्स में, अच्छा आई एम फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम NLIU भोपाल, मैंने अपने टाइम पर तो ये बहुत करा है कि जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन ने उसको खत्म करते हुए क्या लिख दिया, एक्सेट्रा। कहीं भी फंस रहे हैं अपन ने एक्सेट्रा लिख दिया, 2-3 शब्द थे उसके आगे एक्सेट्रा लिख दिया, कभी कभी एक ही वर्ड है, एक वर्ड के आगे वो समझ में नहीं आ रहा, वो एक ही वर्ड के आगे एक्सेट्रा लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये एक्सेट्रा के साथ होता है कि एक्सेट्रा डज नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, सिमिलरली इवन अदर अथॉरिटीज डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। तो ये अदर अथॉरिटीज के अंदर आता क्या क्या है, तो जिस टाइम पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्लैरिटी नहीं दी है तो क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी आ जाती है जुडिशरी की। अब जुडिशरी ने अदर अथॉरिटीज पे क्या क्लैरिटी दी, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दैट टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12, 4 चीजें, पूरा यूनियन, पूरा स्टेट, पूरा थर्ड लेवल, और चौथा अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में क्या आता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट, आर्टिकल 12, एंड फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 12 अभी इतना समझो। एक लास्ट पॉइंट अपन आज कर लेते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 4 फीचर्स ब्रॉडली होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। नंबर 1, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। सो जस्टिसिएबल का मतलब होता है दे आर एनफोर्सिएबल इन नेचर। अनलाइक DPSP, याद आया होगा शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में लॉ स्कूल में पढ़ा होगा, DPSP विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर मोर ऑफ रिकमेंडेशंस। वो जस्टिसिएबल नहीं है। मैं किसी पर्सन को कोर्ट ये बोलते हुए नहीं लेके जा सकता हूँ कि भाई तुमने DPSP को फॉलो नहीं करा, या मैं गवर्नमेंट को कोर्ट लेके नहीं जा सकता हूँ कि आपने DPSP को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा, पर मैं गवर्नमेंट को कोर्ट लेके जा सकता हूँ ये बोलते हुए कि आपने मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, विच मीन्स राइट्स आर एनफोर्सिएबल इन नेचर। और एनफोर्सिएबल का अ मोर लीगल टर्म इज राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, द सोर्स। फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है दैट इज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स थे विच बेसिकली कंप्राइज द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। वो बिल ऑफ राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है। ब्रॉडली मैक्सिमम राइट्स हमने वहीं से उठाए। काफी मामलों में यूएस को आगे मानो नहीं मानो, पर दुनिया में राइट्स के मामले में यूएस बहुत आगे था, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मामले में यूएस बहुत आगे था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड वाज ऑफ द यूएस। सो राइट्स भी हमने कहां से इंस्पायर्ड है, यूएस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है। नंबर 3, द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, focus on the word not, fundamental rights are not absolute in nature, which means उनके exceptions हैं, उनको हटाया जा सकता है, उनको restrict किया जा सकता है, कुछ केसेस में आपको rights exercise करने से रोका जा सकता है। मेरे पास right to life है, पर अगर मैंने मर्डर किया है और अगर मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ जाता हूं तो मुझे डेथ पेनल्टी मिल सकती है। कोई पर्सन मुझे सेल्फ डिफेंस में मार सकता है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ इसको डिफेम करने के लिए, और अगर मैं कर रहा हूँ मुझे रोका जा सकता है। सो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड इन सर्टेन केसेस, जिसको अपन पढ़ेंगे आगे। दैट्स नंबर 3। एंड नंबर 4, दे कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो। सो राइट्स ऑन अ होल कैन बी सस्पेंडेड व्हेन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 which has been imposed in India thrice. So national emergency जब impose होती है तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो, ऑटोमेटिक नहीं होता, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकता है। मतलब राइट्स अपने आप में सस्पेंड नहीं होंगे, बस वो राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो राइट्स हैं पर उनको आप लागू नहीं करवा सकते हो, उनको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 4 चीजें, दे आर जस्टिसिएबल, बाय डिफॉल्ट आप कोर्ट जा सकते हो राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, बट इसको सीधे 4 पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इफ द प्रेसिडेंट वांट्स अंडर आर्टिकल 359 he can suspend the enforcement of fundamental rights. Normally they are enforceable, but under national emergency they can even be made non-enforceable under the orders of the president. Number 3, their source is a US constitution, and number 4, they are not absolute, they can be restricted, and they can be restricted under certain circumstances, and mostly the circumstances are written in the constitution, वो जो अपन आगे पढ़ने वाले, ठीक है। चलो 5 मिनट के अंदर क्विकली सारा लिख लेते हैं अपन। आई थिंक लास्ट अपन ये सारा लिख लिया था। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स फर्स्ट। क्विकली राइट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1, वन लाइनर्स ही लिखेंगे। नंबर 1,
they are justiciable in nature, JUSTICIABLE, they are justiciable in nature, ब्रैकेट में लिखना enforceable, they are justiciable or enforceable in nature, number 2, they have been inspired from the US Constitution, they have been inspired from the US Constitution, they have been inspired from the US Constitution, number 3, they are not absolute in nature, they are not absolute in nature, they are not absolute in nature, and can be restricted, very important point, they are not absolute in nature and can be restricted, and can be restricted, number 4, their enforcement, number 4, their enforcement can be suspended by the President, their enforcement can be suspended by the President under national emergency by the President under national emergency under Article 359. Under Article 359. Under Article 359. Article 12 को अपन अगले क्लास में लेंगे और उस नेक्स्ट क्लास मोस्टली आर्टिकल 12 और 13 में अपनी पूरी निकल जाएगी. So today was the last demo class. So from the next class, it's only going to be for the registered students. Tomorrow and day after it's an off. From the next week, we'll be having classes 5 to 6 days in a week, one class in a day. So any doubts, any recommendations, any ideas, anything that you have, please write in the chat window. कोई भी डाउट है या कोई रिकमेंडेशन है या कुछ है, आई एम श्योर एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम चैनल, उस पर बहुत सारी चीजें पोस्ट करते जाएंगे यूट्यूब पे, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज पार्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल आल्सो. वी विल पोस्ट अ लॉट ऑफ रेलेवेंट स्टफ ओवर देयर आल्सो. सो anything that you have on your mind, please feel free to ask. Otherwise, we'll end the class in 2 minutes. And Monday से, as I said, it's only for the registered students. So next Monday से सारी class registered students के लिए होगी sir. Any doubts, guys? No doubts. Thank you so much. Thank you. कोई भी और डाउट? Still have 2 minutes. टेंशन मत लो. 5 मिनट लेट चालू हुई थी तो 5 मिनट लेट खत्म करेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा. आई होप आज का पूरा क्लियर हुआ. नो डाउट्स? थैंक यू. नो सुधी, आर्टिकल 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. उनको बचा के रखा हुआ है. अगेन इसको अपन बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे. 2021 सस्पेंड नहीं होता है. शुभी, मैं कहूंगा अभी बुक मत खरीदो, 1-2 क्लास और हो जाने दो. देन आई विल गिव यू because once you guys get the material, so material in itself is very exhaustive. Material will be having hundreds and hundreds of questions.
तो वो प्लस थ्योरी प्लस क्लासेस प्लस क्लास के नोट्स बहुत होंगे, तो उसके अलावा कुछ और नहीं। पर हाँ, अगर कुछ महीनों के बाद अगर अपने को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई तो उसके हिसाब से मैं देखेंगे अपने को कौन सी बुक लेनी चाहिए। ठीक है अनुष्का, नो डाउट्स, दैट्स ग्रेट। चिरायु ठीक है, आई विल गेट इट चेक्ड। पर अगर कुछ दिक्कत हो कहीं तो मुझे harsh@legalage.in पे मेल कर देना, कहीं कुछ फंसो या दिक्कत हो, harsh@legalage.in, ठीक है। And all the registered students, you are already a part of the doubt clearing group. If you're not a part of doubt clearing group, एक email कर देना query@legalage.in पे, so you'll be added to the doubt clearing group, all the registered students. So we have a telegram group of everyone, और वहां पर नितेश सर, मैं, अनुजा मैम, हम सब लोग रहने वाले हैं, और we'll all be clearing your doubts. ठीक है? Anything else? Chalo, I think that's it. So thank you so much, guys. I hope you like the class. If you do like the class, please rate the class. That's one way of knowing for us how the students enjoying the class. Please do that. Be a part of the Telegram. Be a part of the YouTube channel. And acha, YouTube pe one more exciting thing that we are starting is from this Sunday. There will be a quiz on YouTube of around 10 questions and 10 to 12 minutes every at least 3 to 4 times in a week, जो ये संडे स्टार्ट हो रही है। तो जुडिशरी गोल्ड का यूट्यूब चैनल आज से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे क्विजेस अटेम्प्ट करना इमीडिएटली स्टार्ट करना। ठीक है, ये संडे पहले होने वाला है।